Assalamualaikum dear students. I am Ms. Musana, your science subject teacher. Today we will start the new chapter, Unit 9. The topic is chemical reaction and chemical bonds. The page number is 81. We see a number of changes going on around us. One of the most important methods of classifying depends on whether new substances are formed during the chain or not. In some of the chain, physical chain, things do not change into something new. In other changes, the chemical chain, things do change into something new. In this chapter, we learn the changes in substances. These changes are maybe physical or chemical changes. What is physical change? A physical change is a temporary change and substance undergoing such changes alter their shapes or volume only, but their decompositions remain the same. Water changes to steam and ice melts to water are changes of physical change. पानी का बर्फ बनना और बर्फ का फिर वापस पानी बनना जो है वो फिजिकल चेंज है. इसी तरह पानी जो है गर्म करने पे स्टीम में चेंज हो जाता है. इस तरह इस स्टीम को वापस हम पानी भी बना सकते हैं. तो ये जो चेंज है जिसमें कोई चीज़ जो है वापस अपनी इसकी हालत में आ सकती है, तो ये कहलाता है फिजिकल चेंज. While a chemical change is permanent change and we cannot get back the original substances by applying ordinary physical methods, a chemical change occurs when two substances react chemically to form new substances with different properties. The original substances are known as reactants and the new substances formed are known as the products. A chemical change is also called as chemical reaction. In chemical reactions जो नया कंपाउंड बनता है रिएक्शन के बाद, तो वो परमानेंट चेंज होता है और उसमें चेंजेस नहीं होती हैं. और जो सब्सटेंसेस जो केमिकल ओरिजिनल चेंज में हिस्सा लेते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं. और जब नया कोई चीज़ बनती है, सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो प्रोडक्ट्स कहलाता है. केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल्स क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम. बर्निंग ऑफ फ्यूल, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, photosynthesis, digestion of food, etc. are the process whether chemical reaction take place and substances are chemically transferred. chemical reaction की example जो है एक है जिस तरह कोई चीज़ जलती है, तो वो जिस तरह फर्ज करें कागज़ को आप जलाते हैं तो वापस उसे असली हालत में आना उसका मुश्किल है. इसी तरह दूध का दही बनना भी है जो है वो केमिकल रिएक्शन है. दही का वापस दूध बनना मुश्किल होता है. इसी तरह जो फूड हम का जो है डाइजेशन प्रोसेस है वो भी जो है केमिकल रिएक्शन में आता है. फोटोसिंथेसिस ये वो अमल है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट्स होंगे. और ग्लूकोज क्या है? वो है प्रोडक्ट्स. ये तो एग्जाम्पल थी. इसके बाद हैं ये जो है चीज़ें जिनको वापस अपनी असली हालत में लाना आसान नॉर्मली नहीं होता है. अब हम कुछ लॉज पढ़ेंगे जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान होते हैं. तो इसमें पहला वाला जो मतलब लॉज ऑफ क्या है? लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन. पहला कॉम्बिनेशन है we have already studied in the beginning of the unit that large number of chemical changes keep on taking place
in our surrounding. Many of these chemical changes are also studied in the laboratory. When scientists studied these chemical changes, they found that these changes follow certain laws. These laws are called laws of chemical combination, and we will study two of each laws here. जो कंपाउंड्स का या एलिमेंट्स का आपस में मिलने के बाद कंपाउंड्स बनाना जो है, इसमें साइंटिस्ट ने स्टडी की तो उन्होंने कहा कि इनका एलिमेंट्स का कंबाइन होके नया प्रोडक्ट्स बनाना, ये इसमें जो है कुछ लॉज के तहत जो है ये कॉम्बिनेशन होता है. इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो लॉज क्या हैं. पहला वाला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. First law of chemically called law of conservation of mass. This law can be stated as follows. Matter can neither be created nor destroyed during a chemical reaction, but it may undergo change in its shape and composition. इस लॉ के मुताबिक कि मैटर जो है ना तो पैदा होता है ना ही बनाया जा सकता, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. जब दो कंपाउंड जो हैं वो मिलकर बनते हैं तो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो उनकी केमिकल रिएक्शन, उनकी जो है वो हैसियत सेम रहती है. यहाँ उसकी एक एग्जांपल है कि किस तरह से. यहाँ देखें दो फ्लास्क हैं. एक जो है फ्लास्क के अंदर जो है उन्होंने जो है सिल्वर नाइट्रेट लिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया हुआ है फ्लास्क में, और इसमें एक छोटी टेस्ट ट्यूब जो है हैंग की गई जिसे सिल्वर नाइट्रेट कहा गया. इन दोनों का इस फ्लास्क का पहले रिएक्शन से पहले या मिक्स करने से पहले वेट कर लिया गया है. सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे, जिसे सोडियम क्लोराइड जिसे आम हम नमक भी कहते हैं. नमक का सॉल्यूशन इसमें लिया हुआ है और रिएक्शन करने से पहले इन दोनों का वेट किया गया. उसके बाद जो इसमें टेस्ट ट्यूब से मिक्स हिलाने के बाद जब मिक्स किया गया तो इसमें जो बना क्या बना, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना है. तो जब इन दोनों का फिर इसका दोबारा से वेट किया गया तो उसका वेट जो था वो भी पहले के वेट के बराबर ही था. यानी कंपाउंड बनने से पहले और कंपाउंड बनने के बाद जब वेट किया गया तो वेट जो था वेट इक्वल था. टेक एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ फ्लास्क. टेक एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब. इसमें देखिए फ्लास्क में सिल्वर क्लोराइड लिया है सोल्यूशन और इसमें सिल्वर नाइट्रेट लिया है. एंड हैंग इनटू द फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एज शोन इन फिगर 9.1. Note the mass of flask on top loading balance. Mix the two solutions by pulling the thread while precipitate of silver chloride is formed by the chemical reaction between the two solutions. क्या बना, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम के वजह से सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना. Note down the mass of flask. Again, you will observe that the mass of the flask before and after the experiment remain the same. This proves that mass of the reaction and products remain the same during the chemical reaction. There are such chemical reactions in which seems that matter has destroyed. For example, during the burning of coal. कुछ reactions हमें ऐसे लगता है जिसमें कुछ चीजें जो है जाया हो रही हैं, लेकिन क्या है, for example during burning the coal, carbon dioxide and water are formed. It is masses of the reactant before experiment and mass of products afterwards are measured. It is found that both the same
both the mass are the same. जो है इसमें भी जब हम मास जो है जिस तरह चीज कोयल का बर्निंग होता है, पहले जो वेट करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, इसको अगर हम चेक करते हैं उनका वेट, तो वो वेट जो है वो भी सेम होता है. तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है मैटर कैन नाइदर एज बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बट इट मे अंडरगो चेंज इन द शेप एंड कंपोजिशन. यानी कंपोजिशन, अब देखें जो सिल्वर क्लोराइड बना वो क्या है? सिल्वर और क्लोरीन से मिलकर बना है. यहाँ सिल्वर नाइट्रेट था, सिल्वर और नाइट्रेट से मिलकर बना है. सोडियम और क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड बना. जब नया प्रोडक्ट बना वो कौन सा? तो उसकी कंपोजिशन क्या थी? एक में सिल्वर और क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड में, और दूसरा सोडियम नाइट्रेट में सोडियम और नाइट्रेट. यहाँ देखें दोनों की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, शेप डिफरेंट हो जाती है, केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट हो जाती है, लेकिन उनका मास जो है बिफोर और आफ्टर द रिएक्शन सेम ही रहता है. अब हम दूसरा जो है वो लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. केमिकल रिएक्शन के दौरान हमने पहला वाला पढ़ा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है, और अब हम दूसरा लॉ पढ़ेंगे, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. A chemical compound can obtain from many sources or it can be prepared in the laboratory by a number of different chemical reactions. For example, water is such a chemical compound which can be obtained from river, well, spring, sea and many other sources. Water can also be prepared by chemical reactions in the laboratory. Water may be obtained from the whatever sources. The ratio between the masses of hydrogen and oxygen present in it will always be 1:8. वाटर जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन का 2 होगा. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है. जब 2 और 16 को डिवाइड करेंगे एक दूसरे तो क्या रेशो आता है? 1:8. अब पानी चाहे हम कहीं से लें, चाहे वो दरिया है, समंदर है और चश्मा है, या कुएं से लेंगे, किसी भी जगह से किसी भी सोर्स से पानी लेंगे, उसका हमेशा जब भी चेक करेंगे पानी का रेशो किस से बनेगा? 1:8 से. पानी जो हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं केमिकली से रिएक्शन से, तो उस सूरत में भी उसका रेशो कितना होगा? 1:8. Similarly, carbon dioxide may also be obtained from different sources. For example, burning of coal, burning of sui gas, natural gas found at a place called sui, and a reaction between limestone and hydrochloric acid give the same carbon dioxide. Whatever they be source of carbon dioxide, the ratio between the masses of carbon and oxygen will be always 3:8. कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO2, कार्बन का C और ऑक्सीजन का O होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं. कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो जो है वो 16 होगा. 2 का कितना होगा? 32. जब ये 16 जो है वो 12 और 32 को आप डिवाइड करेंगे एक ही टेबल से, तो क्या रेशो आता है? 3:8. तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से हासिल की जाए, चाहे वो जलाने से हो, चाहे वो सुई गैस से हो, कोयले के जलने से हो, चाहे वो सुई गैस के रिएक्शन जलने से हो, या जो लाइम स्टोन होता है उससे की वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है, तो वो उसका जो है कैल्शियम, लाइम स्टोन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और उससे बनता है, तो वो जो है उसको रिएक्शन से भी हमेशा जो भी होगा उसका रेशो क्या होगा? 3:8 ही होगा. तो
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि a pure chemical compound obtained from different sources will always have a fixed ratio between masses of different elements present in it. Students, today we learn about the chemical reactions and law of chemical combination. Chemical reactions आपको बताया कौन कौन से होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल और परमानेंट चेंज होता है। और दूसरा हमने लॉस पढ़े कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट्स बनता है या एलिमेंट या कंपाउंड के दौरान जो रिएक्शंस होता है उन पर कुछ रूल्स ये लॉस के तहत होते हैं जो साइंटिस्ट ने कहा। तो आज हमने दो लॉस पढ़े हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसके तहत मैटर कैन neither be created nor destroyed during the chemical reaction but it may undergo change in the shape and composition. The second is a pure chemical compound obtained from different sources will have always a fixed ratio between the masses of different element present in it. तो उम्मीद है आई होप कि आप लोगों को ये जो चैप्टर पढ़ाया गया है इसका इंट्रोडक्शन दिया है, ये चैप्टर जो है सितंबर के हवाले से है और आप लोगों को यकीनन समझ में आएगा। और अगर इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप उसमें से कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके अपने ग्रुप पे उसके बारे में पूछ लें, मालूम कर लें ताकि उस चीज़ को आपको दोबारा दोहराए या समझाया जा सके। थैंक यू।